لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بہت ہی اہم ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو ہے، جمعیت کی ٹیم نے، جمعیت کے ذمہ داران نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ 4 ایسی مسلم لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کھانا پینا ہو رہا تھا، اور بہت بڑا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس تعلق سے پوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، باقاعدہ ان کی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور جموں کشمیر کی یہ ویڈیو ہے جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب ایک شخص کو کلمہ توحید پڑھوا کر، کلمہ توحید کہلوا کر ایمان میں داخل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اس شخص نے ایمان قبول کیا، مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو سلامت رکھے، ان کی نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا فرمائے، آمین۔ آپ اس خوبصورت منظر کو دیکھیے گا، ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ صلوات اللہ وسلامہ۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد رسالت و نبوت کا دروازہ بند۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ جی ہاں دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے۔ اب ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے آپ کو اس ویڈیو کے تعلق سے بتا دیتے ہیں، یہ ویڈیو ہمارے پاس بھیجی ہے جمعیت علماء ہند ضلع دہرادون صوبہ اتراکھنڈ کے صدر، یعنی ضلع دہرادون کے صدر ہے مولانا عبد المنان صاحب قاسمی۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ 4 مسلم لڑکیاں جن کا تعلق دہرادون سے ہے، وہ کسی غیر مسلم لڑکوں کے تعلق میں تھی، ان کے رابطے میں تھی، ان کے ساتھ کھانا پینا گھومنا پھرنا ہو رہا تھا، اور بہت بڑا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جمعیت علماء ضلع دہرادون کے ذمہ داران کو اس تعلق سے معلوم ہوا، اور انہوں نے اس کی فکر لی، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پورا وفد جمعیت کا ان کے گھر پر پہنچے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے ماں باپ کو سمجھایا، پھر ان بچیوں سے بھی ملاقات کی جو اس طرح کی غلط حرکت کر رہی تھی، اور ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اور ایمان کی حقیقت، ایمان کی عظمت، اپنے مذہب کی عظمت ان کو بتائی۔ اور اللہ کا کرم یہ رہا کہ وہ تمام بچیاں مان گئی، سمجھ گئی، اور آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ کی۔ باقاعدہ مولانا عبد المنان صاحب قاسمی، مفتی ایاز صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو ہمارے پاس بھیجی ہے، جس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جو دہرادون سے آئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ کچھ بچیاں ہیں جو غیر کے ساتھ چلی گئی تھی، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ آج یہاں پر دہرادون میں جمعیت کی ایک ٹیم اور نوجوان ساتھی ہمارے مل کر کے اس کی تحقیق میں لگے، اور ان کے گھر تک پہنچے، اور جا کر کے ان کے گھر والوں سے بات کی، ان کی بچیوں سے بات کی۔ ہمارے ساتھ میں موجود رہے بھائی محمد رضوان، بھائی محمد تنویر صاحب، بھائی محمد توصیف صاحب، بھائی محمد امن، اور اسی طریقے سے مولانا محمد راغب صاحب، نائب شہر صدر جمعیت علماء دہرادون، اور ہمارے ساتھ جو اس تمام کام کی سرپرستی فرما رہے تھے اور اس میں پیش تھے، اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے گھر والوں سے بات کی اور بچوں سے تحقیق کی۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب صدر جمعیت علماء ضلع دہرادون، اور اسی طریقے سے ماسٹر عابد
साहब और इसके अलावा और भी साथी इस काम में लगे हुए थे और पूरे दिन से इसी तहकीक में लगे हुए हैं और इस काम में लगे हुए हैं। अब ये रात का वक्त हो गया है, 12 बजे गए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हमने तहकीक की है, क्या बात सामने निकल करके आई है और क्या उसमें सच्चाई है और उनके वालिदैन ने क्या कहा है और बच्चियों ने क्या कहा है, पूरी तफसील के साथ वो बात आपको हमारे हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब सदर जमीयत उलमा जिला देहरादून आपके सामने रखेंगे। आप तफसील के साथ उनकी बात सुनेंगे और आपको फिर मालूम हो जाएगा कि क्या सच्चाई थी और क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मुफ्ती अयाज साहब ने बताया है कि 4-5 बच्चियां जो ज़िला देहरादून उत्तराखंड से सोशल मीडिया पे कल से गश्त कर रही हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि गैरों की चुंगल में फंस चुकी थी। मामला ये सामने आया है कि बच्चियां गैरों की चुंगल में फंसकर अपने ईमान का सौदा करने वाली थी, लिहाजा जमीयत उलमा की पूरी टीम ने इस मामले को संगीनी के साथ लेते हुए और इस मामले को बहुत ही अहम मुद्दा समझते हुए फौरन इस पर एक्शन लिया और आज दोपहर उन बच्चियों से और उनके अहले खाना से मुलाकात की और हकीकत हाल जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है और ये सोशल मीडिया पर जो आपकी वीडियो गश्त कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ झूठ है। बहरहाल जब हमने अहले खाना से और उन बच्चियों से बात की तो मामला ये निकल करके सामने आया कि कुछ इस वीडियो के अंदर सच्चाई है। जो सच्चाई हमारे सामने आई हमने उसको सामने रखकर उन बच्चियों से बात की है और सारी बात उनसे जानने की कोशिश की है। घंटों की गुफ्तगू करने के बाद तफसीली उनसे गुफ्तगू हुई जिसका खुलासा ये निकला कि उन बच्चियों ने इकरार कर लिया कि हाँ वाकई हम गैरों की चुंगल में फंस चुकी थी और इस तरीके से हमें वरगला करके फुसला करके अपने साथ ले जाने की कोशिशें की जा रही थी। बहरहाल ये कोई पहला वाकया नहीं है और इस वाकये का इत्तिफाक नहीं है, ये सोची हुई एक साजिश है और सोची समझी साजिश है। मुस्तकिल इस तरह के वाकयात इस तरह के हादसात देखने में आ रहे हैं जो अखबारात की सुर्खियां बनकर छपते हैं। एक ईमान वाले के लिए तड़पा देने वाली खबर है। बहरहाल जिम्मेदार लोगों ने इस पर एक्शन लिया। हमारे साथ तौसीफ भाई हमारे साथ रहे हैं, तनवीर भाई साथ रहे हैं और मास्टर आबिद साहब ने इसमें अपना अहम रोल अदा किया है। दीगर जिम्मेदार लोग भी इसमें मौजूद रहे हैं। सबने इस मामले की छानबीन करने के बाद खुलासा ये निकला कि हमने उन बच्चियों से बात की, उन्होंने अपनी गलती से तौबा कर ली। बच्चियों की उम्र अभी कम है, गलतियां हो जाती हैं, तो उन बच्चियों से जो गलती हुई है उन्होंने वाकई मान लिया है कि हमसे गलती हुई है और आइंदा गलती न करने का पुख्ता अज़्म और इरादा कर लिया है कि हम तौबा करती हैं, आपके सामने भी तौबा करती हैं, अल्लाह के सामने भी तौबा करती हैं, हम इस तरह की कोई भी गलती आइंदा नहीं करेंगी। उन बच्चों ने इस बात का इकरार किया है। ये तो खुलासा हुआ इस सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली वीडियो का, लेकिन मैं जिम्मेदार हजरात से, देहरादून और तमाम हिंदुस्तान के बड़े उलमा से और दानिशुरान कौम से और जिम्मेदार लोगों से जो कौम के लिए काम कर रहे हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या है, हमारी बच्चियां ईमान का सौदा क्यों कर रही हैं। जो बच्ची मुस्लिम घराने में पैदा हुई हो, ईमान रखती हो अपने सीने के अंदर, 20-22 साल तक उसने खुदा की परस्तिश की हो, आखिर मामला क्या है कि साल 2 साल किसी गैर की चुंगल में फंस करके अपने ईमान का सौदा कर लेती है। ये चिंता का विषय है, ये सोचने की बात है कि आखिर मामला क्या है। बहरहाल उलमा इकराम को अपने बयानात में इस चीज को शामिल करना होगा कि हम अपनी बच्चियों पर ध्यान दें। बच्ची अपनी माँ के पास, अपनी माँ की छाती के पास ही सेफ रह सकती है, अपने घर में ही सेफ रह सकती है। जब बच्ची स्कूल और कॉलेज जाएगी, ट्यूशन सेंटर जाएगी या जॉब करने के लिए कहीं जाएगी तो उसके ईमान को बचाना ये मुश्किल बात है। इसलिए तमाम जिम्मेदार लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बयानात में ये जुज़ भी शामिल करें और खास तौर से अपनी बच्चियों पर ध्यान रखें, उनके मोबाइल पर ध्यान रखें कि हमारी बच्चियां मोबाइल का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वालिदैन से मेरी अपील है कि माँ बाप के पास बच्ची रह रही है, उनके पास ज्यादा वक्त गुजार रही है, स्कूल कॉलेज में 2-4 घंटे के लिए जाती है, बच्ची 17-18 घंटे अपने माँ बाप के पास रह रही है, तो माँ बाप को अगर बच्ची के हालात की तहकीक नहीं है और बच्ची की खबर नहीं है तो मैं तो जुर्रत के साथ ये बात कहूंगा कि उस माँ को माँ कहलवाने का हक ही नहीं है जिसको अपनी बच्ची के बारे में पता नहीं तेरी बच्ची जा कहाँ रही है। अपनी बच्ची की जवानी पर माँ को ऐसे नजर रखनी चाहिए जैसे एक शिकार करने वाला शिकारी एक शिकार के ऊपर नजर रखता है। इस तरीके से माँ को जो है अपनी बच्ची पर नजर रखनी चाहिए। बहरहाल
मुस्लिम तमाम मैं कौम से अपील करता हूँ, तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान दें, उनको दीन सिखाएं, उनको तारीख बताएं, उनको ईमान की हकीकत बताएं, उनको अल्लाह के नबी के अखलाक बताएं। अगर हमारी बच्चियों के सीने के अंदर ईमान होगा, दीनदारी उनके सीने के अंदर होगी, दुनिया की कोई ताकत उनके सीने से ईमान को नहीं निकाल सकती है। आखिर वजह यह है कि माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की है, बाप ने बच्ची की अच्छी तरबियत नहीं की है, जिससे हमारी बच्ची थोड़ा बहुत लालच के चक्कर में आकर के अपने ईमान का सौदा कर लेती है। बहरहाल तमाम माँ बाप से भी अपील है, तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान दें और इस मामले को संगीनी के साथ लेते हुए, ये तो हमें छोटी सी वीडियो मिल गई है, ऐसी एक बच्ची नहीं और भी सैकड़ों बच्चियां इसकी जद में आ चुकी होंगी, उन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और मेरी तमाम दानिशवराने कौम से ये अपील है कि इन स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों का कोई तरबियती निजाम बनाया जाए जिसमें इन बच्चियों को दीन सिखाया जाए। बस जो ये वीडियो सामने सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी, मेरी तमाम हजरात से जिन तक ये पहुंची है, जिनके मोबाइल में ये वीडियो पड़ी हुई है, उनसे अपील है, वालिहाना अपील है कि इस वीडियो को आगे ना चलाएं, इस बात को यही खत्म कर दें। बच्ची ने, उनके घर वालों ने इकरार कर लिया है, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है और आइंदा ना करने का अज़्म कर लिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने इस वीडियो को देख लिया है दोस्तों। आप जमीयत के ज़िम्मेदारान है या मस्जिद के अइम्मा हज़रात है, उलमा हज़रात है, आप सबको भी ये फ़िक्र लेने की ज़रूरत है। अपने महलों में, अपनी बस्तियों में, अपने गाँव में, अपने कस्बों शहरों में देखें और इस तरह कहीं आपको नज़र आता है या आप सुनते हैं तो खुदारा आप वहाँ पर जाइए, उनको समझाने बुझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त इर्तिदाद का जो एक ट्रेंड सा चल रहा है बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मुस्लिम बच्चियां अपने ईमान से हाथ धो रही हैं और फिर बाद में उनका जो अंजाम होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। बहुत से वाक़यात, बहुत सी ख़बरें, बहुत सी न्यूज़ आपने देखी और सुनी होगी। अल्लाह ताला हम सब की, तमाम बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।